Good morning, everyone. You know cube, cuboid, or this Rubik's cube, or a pile of gold. I am Arvind Kumar Vishwakarma, and you guessed it right. We are going to learn visualizing solid shapes, and this video is for class 7. And I will be covering NCERT textbook. Okay, let's go. Okay, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे plane figures and solid shapes. So in this chapter you will classify figures you have seen in terms of what is known as dimension. In our day-to-day life, we see several objects like books, balls, ice cream cones, etc. around us which have different shapes. तो आप देख सकते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में ये हैं बुक्स, बॉल्स और आइसक्रीम कोन. इन सभी शेप्स में आपको लेंथ के अलाउंग कुछ मेजरमेंट मिलेगा और ब्रेथ के अलाउंग कुछ मेजरमेंट मिलेगा. ओके, जिसको हम आगे कर रहे हैं डायमेंशन. तो लेंथ के अलाउंग मिलेगा, ब्रेथ के अलाउंग और हाइट के अलाउंग भी कुछ मिलेगा. ठीक है, so that's why one thing common about most of these objects is that they all have some length, breadth and height or depth. That is, they all occupy space and have 3 dimensions. What is 3 dimension? That is length, along the breadth and along the height. Hence they are called 3-dimensional space. Do you remember some of the 3-dimensional spaces, that is solid shapes, you have seen in earlier classes? Okay, here you can see some of them, but here name is not according to that, and that's why you have to match the shape with the name. Like the first one here is cylinder, so that will match to this one. And second one is ball, that is spherical shape, that will match with this one. Okay, second one will go to D, and so on. By a similar argument, we can say figures drawn up on paper which have only length and breadth are called 2-dimensional, that is plane figures. We have also seen some 2-dimensional figures in the earlier classes. So here match the 2-dimensional figures with the names. तो यहाँ पे आपको फिर से ये मैच करना है. Just like first one is rectangle, so that will match with this. First one will match with B. Okay, second one is circle, so it will go here, and so on. Now note, we can write 2D in short for 2 dimension and 3D in short for 3 dimension. Now faces, edges and vertices. Do you remember? क्या आपको याद है क्या है faces, edges and vertices? The faces, vertices and edges of solid shapes which you studied earlier. Here you see them for a cube. So यहाँ पे हम देख सकते हैं क्यूब है, और ये जो पॉइंट से मार्क किया गया है ये इसके एक पॉइंट एक वर्टेक्स है. तो ऑल द पॉइंट्स मीन्स दीज आर इट्स वर्टिसेस. ओके, हियर यू कैन सी इन डॉटेड लाइन, और यू कैन सी हियर व्हाट इज इन लाइन सेगमेंट. डॉटेड लाइन से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, ये है एज. सो हियर वी कैन सी वन एज, एंड ढेर सारे एजेस हैं तो हम कहेंगे प्लूरल फॉर्म edges. Okay, and here we have face. Okay, flat surface जो रहेगा उसको हम face कहेंगे. So we have 8 corners of the cube. Okay, as its these are its vertices. So ये इसका vertex है, तो इसमें आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, and here we have 12 line segments, and those form the skeleton of the cube. So just like we have skeleton here, cube have its skeleton
इसको हम कहेंगे एज। तो 1 लाइन सेगमेंट ये एज है। ओके, तो इसके पास 12 एजेस हैं और 6 फ्लैट सरफेस। तो ये फ्लैट सरफेस है और टोटल काउंट कर सकते हैं वो 6 आएंगे। ठीक, नाउ ये आपको एक्टिविटी करना है, ये टेबल कंप्लीट करना है और उनके नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस को काउंट करना है, लाइक फॉर अ क्यूब एंड स्क्वायर पिरामिड। आफ्टर दैट दिस मिक्स शेप क्यूब के ऊपर एक पिरामिड रखा है और यहाँ पे एक क्यूब का ऊपर से एंगल करके कट किया गया है। तो इसमें कितने फेसेस होंगे, कितने एजेस और कितने वर्टिसेस, इसको आपको लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स, टेक अ कार्डबोर्ड, ओके, एंड कट द बॉक्स टू ले द बॉक्स फ्लैट। तो ये इस तरीके से फ्लैट हो जाएगा। और नाउ you have a net for the box. A net is a sort for skeleton outline in 2D. तो ये जब हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसका वो आउटलाइन जो होता है लाइन सेगमेंट से बना हुआ, वो जब हम उसको फ्लैट रखेंगे तो वो एक नेट फॉर्म करेगा। हम उसको फोल्ड करके फिर से बॉक्स बना सकते हैं। फोल्ड करेंगे और ये बॉक्स बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे here you got a net by suitably separating the edges. तो एक यहाँ पे नेट दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या इसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है, मीनिंग इज द रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल। तो हमें इसको फोल्ड करके देखना है और क्या ये एक बॉक्स बनेगा। तो आप देखेंगे यस इट विल मेक अ क्यूबॉइडल बॉक्स। ओके, और सिमिलरली you can get a net for cone by cutting a slit along its land surface. तो आप यहाँ पे ऐसे कट कर ओपन करेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। और you have different nets for different shapes. So यहाँ पे देख सकते हैं क्यूब के लिए नेट है, ये कोन के लिए, this one is for cylinder. We could also try to make a net for making a pyramid like the Great Pyramid in Giza, Egypt. You can see in your book figure number 15.8 that pyramid has a great square base and triangles on the 4 sides. See if you can make it with the given net. Okay, इसको आप फोल्ड करेंगे तो एक पिरामिड, स्क्वायर बेस वाला पिरामिड बनेगा जिसको हम कहेंगे स्क्वायर पिरामिड। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक सिंथॉल का बॉक्स था जो कि क्यूबॉइडल बॉक्स है। जब हम इसको कट ओपन करते हैं इस तरीके से तो ये एक नेट फॉर्म करेगा। हम इसको ऐसे फ्लैट रखेंगे और ये मार्किंग मैंने किया है, आप देख सकते हैं। हम इसके अलोंग ऐसे फोल्ड करेंगे तो अपोजिट में फोल्ड करके दिखा देता हूँ। ओके, तो ये फिर से एक क्यूबॉइड के शेप में आएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई यू कैन सी हियर इट इज़ अ नेट फॉर a cuboid. Okay, here we have a Rubik's cube. Okay, and you can see how to solve it, but here I am not going to solve it. मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा। हम इसके आप देख सकते हैं ये क्यूब है। ओके, तो हम इसके लिए नेट फॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से हम नेट फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये 6 फेसेस हो गए एंड हियर 2 मोर फेसेस। So you can see here it is a net for cube. Okay, now I will cut it एंड इसको मैं अभी कट कर रहा हूँ और इसके बाद इसको फोल्ड करके दिखाऊंगा कि हाँ ये एक क्यूब फॉर्म कर रहा है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे एजेस के लाऊं तो बाहरी पार्ट के बीच में करना है।
So main part is done. Now finish it. So this is net for a cube. Okay. अब हम इसको इसके एजेस के लॉन्ग, ये जो एज है फ्लैट है, हम इसको फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करके देखते हैं कि हमारे बॉक्स बनता है या नहीं। Okay. Now you can see here it is a cube. All its faces are covered. Okay. Now I have drawn using this cube again 6 faces. You can count 1 2 3 4 5 6. But क्या यह एक नेट फॉर्म करेगा? मीनिंग अब अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो क्या ये क्यूब कंप्लीट करेगा? तो इसको देखते हैं। हम इसको फिर से कट ओपन करेंगे। ओके, तो इसको कट करते हैं इसके लॉन्ग। ओके, तो ये हो गया। तो इसको मैंने कट ओपन किया। अब हम इसको फिर से फोल्ड करके देखेंगे क्या यह नेट फॉर्म करेगा, वेदर इट इज़ अ नेट फॉर क्यूब और नॉट। तो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए हम इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हैं तो ये 3 साइड इधर से तो देखने में ये कंप्लीट है, बट दिस साइड इज़ नॉट कवर्ड। ओके, ये फेस कवर नहीं हुआ है, डेट्स वाई इट इज़ नॉट अ क्यूब फॉर इट इज़ नॉट अ नेट फॉर क्यूब। ओके, ये आप समझ गए कि जब हमने इसको फोल्ड करके देखा तो इसका हर एक फेस कवर नहीं हो रहा था, इसलिए यह नेट नहीं है इस क्यूब के लिए। ओके, आपके बुक में क्वेश्चन दिया है कि डाई, लूडो का डाई जो हम रोल करते हैं, लूडो खेलते हैं, आपने लूडो खेला है? ओके, let me know in the comment box. But here लूडो के डाई का प्रॉपर्टी होता है कि उसका अपोजिट फेस, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आएगा 6, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 7. So here I have to write it. If this is 1, then its opposite face, आप देख सकते हैं इसका अपोजिट फेस यहाँ पे, it has to be 6. So here I write 6. In actual in Ludo die it is dot, 1 dot होता है और यहाँ पे 6 dot. ओके, उल्टा देखेंगे तो 9 लगेगा। ओके, इट इज़ 6. That's why ये कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए ही कि ये 9 तो नहीं हो गया, वो उसमें डॉट्स दिए होते हैं कि आप उसको काउंट करके कर लें। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 है तो इसके अपोजिट में कितना आना चाहिए? 3. ओके, अगर यहाँ पे 5 है तो इसके अपोजिट में आना चाहिए 2. तो आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 6 तक सारे नंबर्स हो गए और इस तरीके से हमें मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा फेस कहाँ पे जाएगा, और इट इज़ 6. ओके, टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। तो आप देख सकते हैं कि ये इसके कॉन्जुगेटिव है, तो ये तो इसका अपोजिट फेस नहीं हो सकता। जब ये फोल्ड होगा तो ये कहाँ पे जाएगा? 6, और ये तो अपोजिट फेस कहाँ पे है? आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। और आपके बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं डिफरेंट नेट्स हैं, आप पहले ऐसे फोल्ड करके देखेंगे कि हाँ नेट फॉर्म हो रहा है, और अगर हो रहा है तो अपोजिट फेस क्या क्या है। ठीक, नाउ एक्सरसाइज 15.1 is your homework. Okay, thank you.